بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرسٹینا میری بڑی بیٹی اللہ کی طرف سے میرے نام پہلا پیغام تھی۔ وہ پیدا ہوئی، وہ ٹرے میں پڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میں حیران رہ گیا۔ میری بیٹی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ وہ 10 ماہ کے بچے کی طرح اپنی ٹانگوں اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ میں میڈیکل ڈاکٹر تھا، دنیا کے شاندار ترین اسپتال کا ڈائریکٹر تھا۔ میری پوری زندگی میڈیکل سائنس اور اینتھروپولوجی میں گزری تھی۔ میں جانتا تھا انسان کا بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان آہستہ آہستہ کھڑا ہونا سیکھتے ہیں، مگر میری بیٹی کرسٹینا پیدائش کے چند گھنٹے بعد ٹرے میں کھڑی تھی اور اپنی چمکدار آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نادان تھا، میں بے وقوف تھا، میں اللہ کے اس پیغام کو میڈیکل معجزہ سمجھا اور بھول گیا۔ لیکن پھر میرے اللہ نے مجھے دوسری کال کی، اور یہ کال بہت خوفناک تھی۔ میں بے اختیار اس کے سامنے جھک گیا اور میرے اللہ نے مجھے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ یہ ڈاکٹر لارنس براؤن کی کہانی کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ کیا تھا، ہم اس کی طرف جانے سے پہلے ڈاکٹر لارنس براؤن کے بارے میں جانیں گے۔ لارنس براؤن 1959 میں سین فرانسسکو میں پیدا ہوئے۔ خاندان 1677 سے امریکہ میں تھا اور یہ لوگ جدی پشتی عیسائی تھے۔ لارنس براؤن خاندان سے مختلف تھے۔ یہ شروع ہی میں مذہب سے باغی ہو گئے، یہ ملحد بن گئے۔ دنیا کی 2 بہترین یونیورسٹیوں سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ کارنل یونیورسٹی سے آرٹس اینڈ سائنس میں گریجویشن کی اور براؤن یونیورسٹی میڈیکل کالج سے میڈیسن میں ڈاکٹریٹ کی۔ یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دنیا کے بہترین اسپتال جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل سے منسلک ہو گئے۔ یہ ایئر فورس میں بھی رہے اور یہ مشرق وسطیٰ میں میڈیکل ڈائریکٹر اور آنکھوں کے شعبے کے سربراہ رہے۔ یہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی اسپتال میں کام کرتے تھے، ملحد تھے، کسی مذہب پر یقین نہیں کرتے تھے، سائنس اور تحقیق کو دنیا کا سب سے بڑا مذہب کہتے تھے، اور یہ عام محفلوں میں کہا کرتے تھے مذہب قصے کہانیوں اور داستانوں کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں 2 حیران کن واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ 1990 کے شروع میں کرسٹینا کی پیدائش تھی۔ کرسٹینا جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل میں پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر لارنس براؤن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بچی اٹھ کر اپنی ٹانگوں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ میڈیکل سائنس کے پاس اس معجزے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے اس واقعے کو مشکل سی کرم میں تبدیل کیا اور اسے کرسٹینا سینڈروم کا نام دے دیا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن اس واقعے کے بعد بھی ملحد رہے۔ یہ اپنے عقائد کا برملا پرچار بھی کرتے رہے۔ دوسرا واقعہ کرسٹینا کی پیدائش سے 10 ماہ بعد پیش آیا۔ 10 اکتوبر 1990 کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری بیٹی جینا عنایت کی۔ یہ بچی پیدائشی طور پر دل کی خوفناک بیماری کا شکار تھی۔ یہ سر سے پاؤں تک نیلی پیدا ہوئی تھی۔ یہ نیلا رنگ ثابت کرتا تھا بچی کا خون آکسیجن جذب نہیں کر رہا۔ چنانچہ بچی کو پیدائش کے فوراً بعد آپریشن تھیٹر شفٹ کر دیا گیا۔ ایکس رے ہوا، پتہ چلا بچی کے سینے میں دل کی مرکزی آرٹری بند ہے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن خود ڈاکٹر بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی۔ یہ جانتے تھے بچی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، پورا سینہ کھولا جائے گا اور دل کی مرکزی رگ کاٹ کر اس میں عارضی نالی لگائی جائے گی۔ یہ انتہائی مشکل آپریشن ہوگا۔ بچی اس میں بچ نہیں سکے گی، اور یہ اگر بچ بھی گئی تو نالی زیادہ دنوں تک کام نہیں کرے گی۔ بچی 2-3 برس بعد ایک بار پھر اس تکلیف دہ عمل سے گزرے گی اور یہ اس میں ضرور انتقال کر جائے گی، اور یہ اگر اس میں بھی بچ گئی تو بھی یہ زیادہ برسوں تک زندہ نہیں رہ سکے گی۔ یہ بیماری اسے 5-7 برسوں میں والدین سے چھین لے گی۔ ڈاکٹر بچی کے طبی مقدر سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود اسپتال نے نیو یارک کا بہترین ہارٹ سرجن بلا لیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی پہنچ گئی۔ بچی کو آپریشن تھیٹر میں لٹا دیا گیا۔ سرجن آلات سیدھے کرنے لگے اور ڈاکٹر لارنس براؤن پریشانی کے عالم میں آپریشن تھیٹر سے نکلے اور بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلنے لگے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے آخری سرے تک پہنچ گئے۔ انتظامیہ نے چند سال قبل مریضوں کے لواحقین کے لیے اسپتال میں دعا کمرہ بنایا تھا۔ یہ فقط ایک کمرہ تھا۔ کمرے میں دیواروں اور قالین کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لواحقین وہاں آتے تھے اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر لارنس دعا کے کمرے کے سامنے پہنچے، بے اختیار ہوئے، جوتے اتارے اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ زندگی میں پہلی بار دعا کے لیے کسی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دیوار کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے، منت کی پوزیشن میں ہاتھ باندھے اور آہستہ آہستہ سرگوشی کی۔ اے خدا، اگر تم ہو تو پلیز میری مدد کرو۔ مجھے تمہاری مہربانی کی ضرورت ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر میری بیٹی بچ گئی یا اگر صحت مند ہو گئی تو میں وہ مذہب اختیار کر لوں گا جو تمہیں سب سے اچھا لگتا ہے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے اور آنسو پوچھ رہے تھے۔ یہ سارا عمل 15 منٹ پر محیط تھا۔ وہ 15 منٹ بعد آپریشن تھیٹر میں پہنچے اور حیران رہ گئے۔
सर्जन एक कोने में परेशान खड़ा था और ऑपरेशन की टीम हैरत से एक दूसरे को देख रही थी, जबकि बच्ची अपना अंगूठा मुंह में देकर चमकदार नीली आंखों के साथ कभी दाएं देख रही थी और कभी बाएं। जीना ऑपरेशन और दवा के बगैर अचानक ठीक हो गई थी। बच्ची का दोबारा एक्सरे हुआ, पहला और दूसरा एक्सरे एक दूसरे के साथ रखा गया और डॉक्टरों की चीख निकल गई। दोनों एक्सरे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। पहला इंतहाई बीमार बच्ची का एक्सरे था, जबकि दूसरा एक मुकम्मल और सेहतमंद बच्ची का एक्सरे था। डॉक्टर हैरान थे, वो इस मौजज़े की वजह जानना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन वजह भी जानते थे और मौजज़े की हकीकत भी। बच्ची चंद दिन मजीद अस्पताल में रही और डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के साथ घर आ गई। ये बच्ची इस वक्त मेडिकल डॉक्टर है और मुकम्मल सेहतमंद और शानदार जिंदगी गुजार रही है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन को जीना के मौजज़े ने यकीन दिला दिया, खुदा भी मौजूद है और ये इंसानों को मौजज़े भी दिखाता है। डॉक्टर को अपना वादा भी याद था, चुनांचे ये अल्लाह के पसंदीदा तरीन मज़हब की तलाश में निकल खड़े हुए। ईसाइयत का मुताला किया, यहूदी किताबें पढ़ी, ये बुद्ध मतों और हिंदुओं के पास भी गए, ये पॉप और रब्बी आज़म से भी मिले और भारत और तिब्बत भी गए, लेकिन कोई मज़हब इनके दिल को छू ना सका। ये इंतहाई पढ़े लिखे और वसीउल मुतालिया शख्स थे। दुनिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील थे, 4 किताबों के मुसन्निफ थे और मेडिकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। चुनांचे ये हर वक्त लातादाद सवालों से लोड रहते थे। रब्बी आज़म और पॉप तक के पास इनके सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं थे। ये घूमते घूमते तंग आ गए और चलते चलते एक दिन अचानक छोटी सी मस्जिद में दाखिल हो गए। बस मस्जिद की दहलीज पार करने की देर थी और इनकी रूह में एक छोटा सा चिराग जल उठा। ये मस्जिद की दीवार चूम कर वापस आ गए, कुरान मजीद का अंग्रेजी तर्जुमा खरीदा, पढ़ना शुरू किया और फिर रूह रोशन होती चली गई। ये कुरान मजीद के साथ साथ तौरात इंजील का मुताला भी करते रहे। कुरान मजीद मुकम्मल हुआ तो पता चला इस्लाम ही वो मिसिंग लिंक था जिसे ये 4 साल से तलाश कर रहे थे। ये इसके बाद सीरतुन नबी की तरफ मुतवज्जह हुए, सीरत की किताबें पढ़ी और फिर अंदर नूर ही नूर जमा हो गया। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन को हिदायत मिली और ये 1994 में मुसलमान हो गए। ये अब मरीजों का इलाज करते हैं, इस्लाम का मुतालिया करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और तबलीग फरमाते हैं। ये 6 किताबें तहरीर कर चुके हैं। इनका एक नावल दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों में शामिल है। ये नावल चर्च की तारीख, मज़हब और रूहानियत का खूबसूरत इम्तिजाज है। डॉक्टर मुख्तलिफ रसाइल और अखबारात में भी लिखते हैं और इस्लाम पर लेक्चर भी देते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी ज़बान में बेतहाशा तासीर रखी है। आप अगर इन्हें सुनना शुरू करें तो आप सुनते चले जाते हैं। ये अक्सर अपनी कहानी सुनाते हैं और फिर फरमाते हैं, अल्लाह ताला इंसानों को 2 तरीक़ों से अपनी तरफ बुलाता है। ये पहले क्रिस्टीना जैसे मौजों से इंसान को हैरान करता है। इंसान अगर इस पैगाम को समझ जाए और ये अल्लाह के दर पर आ जाए तो सुबहान अल्लाह, लेकिन ये अगर इस पैगाम को मुस्तरद कर दे तो फिर अल्लाह ताला इसे बुलाने के लिए जीना जैसी काल करता है। हम अगर ये भी सुन लें तो भी क्या बात है, हम पर हिदायत के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर हम ये काल भी मिस कर दें तो फिर अल्लाह ताला हमारे दिलों पर मोहर लगाकर दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। वो नए लोगों की तलाश करता है। चुनांचे आप जब भी अल्लाह की पहली काल सुने, आप इसी वक्त दौड़कर इसकी तरफ निकल जाएं। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह की दूसरी काल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपको फिर अपने बच्चे ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर इसकी तरफ दौड़ना पड़ेगा। मैं जब भी डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन जैसे लोगों को सुनता हूँ और फिर अपने आप को देखता हूँ तो हमेशा मेरे दिल से आवाज़ आती है, अल्लाह ताला ने इस्लाम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन जैसे अजीम लोगों के लिए उतारा था। हम जैसे जाहिल और जालिम इसके हकदार नहीं हैं। हम जहालत और जुल्म के अलावा किसी चीज़ को डिजर्व नहीं करते। शायद इस्लाम हमारे जैसे जाहिलों के लिए नहीं था। हम इसके काबिल ही नहीं हैं। आइए अब कहानी को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये कहानी कोई पुराने ज़माने के शहजादों और शहजादियों की कहानी नहीं कि ये कहानी इस बात पर ख़त्म कर दी जाए कि वो इसके बाद हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। ये एक अमरीकी के इस्लाम कबूल करने की कहानी थी। चुनांचे डॉक्टर ब्राउन की असल कहानी मुसलमान होने के बाद शुरू होती है। डॉक्टर ब्राउन कहते हैं, तब्दीली मज़हब बज़ाहिर आसान होता है, लेकिन इसके समाजी और माशरती असरात बहुत दूरस और गहरे होते हैं। डॉक्टर ब्राउन जब मुसलमान हुए तो 1 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ इनकी बीवी इनसे अलग हो गई, बल्कि बच्चों की कस्टडी भी इनकी बीवी के पास चली गई। वो बच्ची जीना जो डॉक्टर साहब की तब्दीली मज़हब की पहली और बुनियादी वजह बनी, वो भी अपनी वालिदा के पास रह गई। डॉक्टर ब्राउन की बीवी डॉक्टर साहब का घर, दौलत, जहनी सुकून और खुशियों का बड़ा हिस्सा भी साथ ले गई। अदालत में तलाक का केस दायर कर दिया गया। अदालत ने बीवी से इस्तफसार किया, क्या डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन इसके साथ मारपीट करता है?
बीवी ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब अपने खावंद के साथ मजीद नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। लिहाजा अदालत ने तलाक का हुक्म जारी कर दिया। ये हुक्म सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा, बल्कि अदालत ने डॉक्टर ब्राउन को हुक्म दिया वो अपने बच्चों और बीवी से कम 100 गज दूर रहें। अदालत ने डॉक्टर को पाबंद कर दिया वो एक सिक्योरिटी गार्ड का बंदोबस्त करें, इसकी तनख्वाह अपनी जेब से अदा करें और वो सिक्योरिटी गार्ड इस बात को यकीनी बनाए कि डॉक्टर ब्राउन के बच्चे और साबका बीवी डॉक्टर ब्राउन से महफूज फासले पर हैं। अदालत का ख्याल था डॉक्टर अब एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है और इसके बच्चों का इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ब्राउन के वालिदैन ने भी अपने बेटे को आग कर दिया। वालिदैन ने ख़त लिखकर ये तक कह दिया वो इन्हें मिलने और फ़ोन करने की कोशिश ना करे, ये इनके लिए मर चुका है और ये इसके बारे में मज़ीद कोई खबर रखने में दिलचस्पी नहीं रखते। डॉक्टर ब्राउन को सिर्फ ख्वानगी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद इनकी समाजी और अमली ज़िंदगी भी तबाह हो गई। इनको अमेरिकन एयर फोर्स के साथ काम करते 12 साल हो चुके थे, लेकिन मुसलमान होने के बाद इनको ये महसूस होने लगा ये नौकरी इनके नए मज़हब के साथ नहीं चल सकती। अमेरिकन वार मशीनरी में मेजर का रैंक और मुसलमान होने के बाद इस वार मशीनरी का हिस्सा रहना इनके ज़मीन पर बोझ बन रहा था। लिहाजा डॉक्टर ब्राउन ने ये नौकरी छोड़ दी। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इनके वो दोस्त जिनके साथ वो डॉक्टर के साथ घूमना पसंद करते थे, वो भी डॉक्टर साहब से दूर रहने और इज्तिनाब करने लगे। मसला ये था डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल करने से पहले पीने पिलाने के आदी थे। ये खुद भी अच्छी बियर बनाते थे, लेकिन अब पीना पिलाना तो दूर, वो ऐसी जगहों पर जाते भी नहीं। लिहाजा डॉक्टर साहब की कंपनी में कौन उठना बैठना पसंद करता। एक बार डॉक्टर ब्राउन के वालिदैन ने भी कहा वो इसकी बनाई बियर को मिस करते हैं, लेकिन डॉक्टर अब अल्लाह को खुश करना चाहते थे, अपने दोस्तों या वालिदैन को नहीं। डॉक्टर साहब अपनी कहानी में गैर महरम औरतों से हाथ ना मिलाने और इनको छूने से गुरेज की बातें करते हैं। यहूदियत और ईसाइयत में भी गैर महरम औरतों से दूरी इख्तियार करने का हुक्म मौजूद है। यहूदी आज भी अपनी महरम औरतों के अलावा किसी और औरत को हाथ मिलाना या छूना गुनाह समझते हैं। इस्लाम की ये तालीमात, ये अहकामात नए नहीं, बल्कि इब्राहिमी अदियान के ऐन मुताबिक हैं। मजीद एक मिसाल में डॉक्टर ब्राउन कहते हैं, क्या कोई पसंद करेगा कि कोई बंदा इसकी कार को हाथ लगाए? जाहिर है नहीं। तो इसी तरह नामहरम औरतों को छूना या हाथ लगाना भी गलत है। डॉक्टर ब्राउन की ये बातें और ये हरकतें इन्हें मजीद तन्हा कर गई। डॉक्टर साहब के मसाइल यहीं ख़त्म नहीं हुए, बल्कि डॉक्टर साहब का घर गया, बच्चे गए और वालिदैन और दोस्तों का साथ भी न रहा। अमेरिका में जिस शख्स का घर हो, बीवी और 2 बच्चे हों, एक कुत्ता हो और कम से कम 2 गाड़ियां हों, तो वो अमीर आदमी समझा जाता है। मगरबी मुमालिक या अमेरिका में घर खरीदना और अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ गुजारना आसान नहीं होता। डॉक्टर साहब के पास ये सब था, मगर जब वो मुसलमान हो गए तो ये सब एक एक करके छिन गया। लेकिन डॉक्टर साहब के बकौल अल्लाह पाक अपने बंदों को इसी तरह आजमाता है। मुझे भी इन मुश्किलात का अंदाज़ा था और मैं ज़हनी तौर पर इस आजमाइश के लिए तैयार था। डॉक्टर साहब को कबूल इस्लाम के बाद एक सस्ते इलाके में स्टूडियो फ्लैट में रिहाइश इख्तियार करना पड़ी। ये एक गंदी इमारत थी। इसमें लोग लिफ्ट और सीढ़ियों के करीब खड़े होकर पेशाब कर देते थे और इसकी बदबू से वहाँ से गुजरना तक महाल होता था, लेकिन वो यहाँ रहने पर मजबूर थे। इनके पास अच्छी रिहाइश के लिए सरमाया नहीं था। डॉक्टर साहब के बकौल ये वो चंद मुश्किलात हैं जो वो बयान कर सकते हैं। बेशुमार मजीद मसाइल और तासुबात हैं जिनका सामना वो आए दिन करते रहे, मगर वो आज इनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते। डॉक्टर ब्राउन का कहना था, यूरोप में अगर कोई शख्स वेनिस, जनीवा, सिडनी या स्विट्जरलैंड में घर बना ले तो इसे कामयाब समझा जाता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे अमेरिका में घर छिन जाने के बाद मदीना में घर दे दिया। मदीना दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। यहाँ चोरी का खतरा नहीं, सुकून है। मैंने पूरी दुनिया घूम रखी है, लेकिन यकीन करें मदीने जैसा शहर कहीं नहीं देखा। अल्लाह पाक ने मुझे अब दूसरी बीवी और बच्चा दे दिया और अमेरिका में जायदाद खोने के बाद अपने अजीज तरीन शहर में घर दिया। अब डॉक्टर साहब के ताल्लुकात अपने वालिदैन से भी बेहतर हो गए हैं। ये कभी कभार बच्चों से भी बात कर लेते हैं, बल्कि साल में एक आध बार मिलकर छुट्टियां भी गुजारते हैं। जिंदगी नॉर्मल हो गई है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन की 2 मशहूर तरीन किताबें गॉडेड एंड मिस गॉडेड हैं। कबूल इस्लाम के बाद वो इब्तिदाई तौर पर इनका घर, बाल बच्चे, वल्दैन, दोस्त यार छिन गए, लेकिन अब इसके सिले में इन्हें अमेरिका से लेकर कीनिया तक, मिस्र से सऊदीया और पाकिस्तान तक लोग जानते हैं, प्यार करते हैं।
इस्लाम कबूल करना या कोई भी मज़हब तर्क करना कभी आसान नहीं होता। इसके लिए आपकी समाजी और माशरती ज़िंदगी तलपट हो जाती है। अल्लाह पाक सबको सुकून की नेमत अता फरमाए और हिदायत के रास्तों पर चलने की तौफीक दे, चाहे वो हिदायत किसी शक्ल में ही क्यों ना हो। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।